بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بینک کی اقسام یعنی باعتبار تمویل۔ بینک کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض بینک خاص شعبوں میں تمویل کرتے ہیں اور بعض عمومی تمویل کرتے ہیں۔ اس طرح بینکوں کی اقسام یہ ہے: زرعی بینک، جس کو عربی میں المصرف الزراعی اور انگریزی میں ایگریکلچر بینک کہتے ہیں، یہ بینک زراعت کے شعبے میں قرض فراہم کرتا ہے۔ نمبر 2، صنعتی بینک، جس کو عربی میں المصرف الصناعی اور انگریزی میں انڈسٹریل بینک کہتے ہیں، اس کا کام صنعتی ترقی کے لیے قرض فراہم کرنا ہے۔ انڈسٹریل بینک کہتے ہیں، اس کا کام صنعتی ترقی کے لیے قرض فراہم کرنا ہے۔ نمبر 3، ترقیاتی بینک، جو بینک کسی بھی شعبے میں ترقیاتی کاموں کے لیے قرضے دیتے ہیں ان کو ترقیاتی بینک کہتے ہیں، جن کو عربی میں بنوک التنمیہ اور انگریزی میں ڈیولپمنٹ بینک کہتے ہیں۔ نمبر 4، کوآپریٹو بینک، جس کو عربی میں المصرف التعاونی کہہ سکتے ہیں، یہ بینک امداد باہمی کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ اس کا دائرۂ کار ممبران تک محدود ہوتا ہے۔ جو لوگ اس کے ممبر ہوتے ہیں انہی کے ڈپازٹ ہوتے ہیں اور انہی کو قرض دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، انویسٹمنٹ بینک، عربی میں بینک الاستثمار کہتے ہیں۔ بظاہر مختلف ممالک میں یہ اصطلاح مختلف مفہوم کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے۔ ہمارے یہاں اس سے مراد ایسا بینک ہوتا ہے جس میں ڈپازٹ متعینہ مدت کے لیے ہوتے ہیں۔ عام کرنٹ اکاؤنٹ یا سیونگ اکاؤنٹ اس میں نہیں ہوتے، صرف فکس ڈپازٹ ہوتے ہیں اور قرضے بھی محدود مدت کے لیے جاری کیے جاتے ہیں۔ اس سے کم مدت کے لیے قرضے نہیں دیے جاتے۔ ان تمام بینکوں کا دائرۂ کار محدود ہوتا ہے۔ نمبر 6، کمرشل بینک، ایسے بینک جو عمومی تمویل کا کام کرتے ہیں، کسی شعبے کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتے، ان کو کمرشل بینک اور عربی میں البنک التجاری کہتے ہیں۔ بینک شروع میں چلا مخصوص چیزیں تھی، آگے بڑھتے ہوئے ضروریات ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ میں مسئلہ مشہور ہے کہ ایسی جیسی ضرورتیں آئے گی، نئی نئی چیزیں ایجاد میں آئے گی۔ اس لیے ایک تو ضرورت کی بنیاد پر آئی اور ایک یہ ہے کہ جس میں فائدہ زیادہ ہوا، تو بینک نے درخواست کی کہ ہمیں فلانی قسم کی بینک چاہیے۔ اب اس علاقے کے اعتبار سے ایگریکلچر کی اگر بینک کی ضرورت ہے اور اس نے ایگریکلچر کے لیے اپنی درخواست کی، تو جو اس کے ماہرین ہیں وہ دیکھ کر اور اطراف میں کوئی دوسری بینک نہیں ہے، یہ سب کچھ سوچ کر اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اس کو بھی فائدہ ہو اور جو اس کے ساتھ متعلق کاشتکار ہے ان کو بھی فائدہ ہو۔ اسی طریقے سے کوئی علاقہ انڈسٹری والا ہے، فیکٹریاں ہیں، وہاں لوگوں کو قرضے چاہیے، تو ان کے لیے اس قسم کی بینک ہو۔ بینکیں تو سب ایک ہی ہے، مقصد تو سب کا ایک ہی ہے، کمانا ہے، لیکن حکومت ان کو تقسیم کر دیتی ہے تاکہ صحیح طریقے سے تقسیم ہو اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو، ان کا بھی فائدہ ہو، خاص کر کے عوام کے فائدے کے لیے۔ حکومت کو قرضہ دینا نہ پڑے، براہ راست بینک سے قرضے مل رہے ہیں تو اچھا ہی ہے حکومتوں کو۔ یہ ایک قسم کی پالیسی حکومتوں کی ہوتی ہے کہ عوام الناس کے رفاہ کے لیے وہ کام کرے اور اس طریقے سے کرے۔ اب آ رہا ہے 15 سال کے واہنوں کو سب کو ختم کرو اور نئے ویکل لاؤ، تو کتنے اربوں اور خربوں کا فائدہ ہوگا حکومت کو، کمپنیوں کو بھی فائدہ، ان کو بھی فائدہ، اور عوام الناس کی روزی بیٹھ جائے گی۔ خاص کر کے کاشتکار لوگ ہیں، ایک ٹریکٹر وغیرہ ہوتے ہیں، غریب بیچارے، پورے سال کا خرچہ اس میں سے نکالنا ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ بینکیں اس کے بعد اس میں ترقی ہوتی گئی، تو تمویل کے اعتبار سے، فائننسنگ کے اعتبار سے بینکوں کی الگ الگ قسمیں ہوئی۔ اسی میں بتلا دیا زرعی بینک، جن علاقوں میں کاشتکار زیادہ ہے وہاں حکومت بھی ایک ہے کوشش کرتی ہے کہ زرعی بینک حکومت خود کھولے، یا جو لوگ بینکیں کھولنے کی سرمایہ دار حضرات درخواست کرتے ہیں تو حکومت ان علاقوں کا اعتبار کرتے ہوئے عام متن یہ کرتی ہے۔ باقی بہت سے علاقوں میں دیکھتے ہیں اس کے بازو میں بینک، مدرسے کے بازو میں مدرسہ، تو اس طریقے سے یہاں بھی اس قسم کی چیزیں چلتی ہے۔ لیکن عام احوال کے اعتبار سے حکومت کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے، اس نظام کے ماتحت اس طرح کی چیزیں بینکوں کے پاس کرواتے ہیں تاکہ کاشتکار علاقوں میں کاشتکاروں کو فائدہ ہو۔ صنعتی علاقہ ہے، انڈسٹریل ایریا ہے، اس کی زمینیں بھی مہنگی بکتی ہے، اس کے سیدھی کاروبار کرنے کا آپ کو، تو ایک تو زمین کھلی آپ خریدیں اور ایک پلاٹ والی حکومت کی طرف سے آپ کو اس کی اجازت مل گئی ہے، یعنی کرائی ہوئی ہے، اور ایک انڈسٹریل ہوتی ہے، اس کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں۔ جو ہمارے رشتے دار بھائی ملک میں رہتے ہیں، ان کو یہاں کھولنا تھا تو 10,000 روپئے اسکوائر فٹ انڈسٹریل۔ کاروباری دنیا ہے، کوئی بھی کاروباری آدمی آئے گا تو سیدھا کہاں آئے گا، رابطہ کرے گا تو اسی علاقے میں کرے گا، تو ان کو ان کے پاس سے زیادہ قیمت لے رہے ہیں حکومت سرکار، یا جنہوں نے بیچا اور انہوں نے انڈسٹریل کروایا اس کا لمبا خرچہ دینا پڑتا ہے، رہنے کا خرچہ اس طرح کا۔ تو ان صاحب کو میں نے کہا کہ آپ کے علاقے میں تو 400 روپئے قیمت ملتی ہے، انہوں نے کہا وہ این زمین ہے اور یہ ہے انڈسٹریل، اس لیے 10,000 روپئے لے گئے، ملے نہیں، لیکن یعنی ان کو کسی نے خریدی نہیں، ابھی تو وہی ایسی پڑی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو صنعتی بینکیں بھی ہوتی ہے۔ اب یہ جو لوگ کارخانے اور فیکٹریاں قائم کرنا چاہتے ہیں اور قرضے بول لیتے ہیں تو ان کو قرضہ
इन बैंकों से मिलता है। ये ज़रूरी नहीं कि इन्हीं से मिले, लेकिन उमूमी तौर पर हुकूमत तकमील में कर देती है कि जाइए आप सनती बैंक से रब्ता कीजिए और वहाँ से आपको मिलेगा। इसी तरह तरक्याती बैंक इलाके ऐसे हैं कि डेवलप करना है, इलाके तो आबाद है लेकिन और मजीद उसमें तरक्की, बम्बई है, दिल्ली है, बड़े बड़े जो शहर होते हैं, अहमदाबाद, सूरत, उनके वो इलाके जो पोश एरिए होते हैं, तो उन इलाकों के अंदर जब तरक्याती चीज़ होती है, कारखाने और फैक्ट्रियाँ कायम की जाती है, तो तरक्की के लिए तो हुकूमत ने ये भी रखा है। लेकिन हिंदुस्तान जैसे मुल्क में तरक्याती बैंकें कम होती है, ज़्यादातर तो और शहरी और सनती, लेकिन दुनिया में है तरक्की पजीर ममालिक है तो उनको तो पजीर ही में अभी, और तरक्की याफ्ता जो ममालिक है उनके यहाँ तरक्की के लिए तरक्याती बैंकें भी होती है। इसी तरह एक और बैंक का नाम लिया कोऑपरेटिव बैंक, उमूमी तौर पर ये इमदाद बाहमी के लिए है, आपसी लोगों के, आपको मैं कह चुका हूँ सोसाइटियाँ गवर्नमेंट बनवाती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसके अंदर दस्तावेजात का खर्चा लंबा स्टैम्प ड्यूटी नहीं करनी पड़ती है। शेयर मिलते हैं 500-700 रुपये का एक शेयर, इस तरीके के आप शेयर खरीद लें। मुराद ये है कि एक ज़मीन 2 लाख रुपये की है तो अलग अलग शेयर, एक 10 रुपये के इतने, 2 लाख रुपये के इतने, इस तरह शेयर के नंबर, इस नंबर से इस नंबर तक के शेयर आपके ये सिर्फ शेयर ज़मीन की खरीदारी के लिए। फिर उस पर मकान की तामीर के लिए अलग से इजाज़त लेनी पड़ती है, आप जानते हो हुकूमतों में इस तरह। तो अब ये है कोऑपरेटिव बैंक भी इस तरह की होती है, कम शरह सूद लेकर लोगों का फ़ायदा करती है। उमूमी तौर पर हमारे जो काश्तकार है और उनकी जो सहकारी मंडली बोलते हैं और उनकी जो इस तरह की कोऑपरेटिव बैंकें होती है, काश्तकारों की जानकारी में बहुत कम है, इस तरह की बैंक नहीं है, करीब के दूसरे छोटे छोटे देहातों में है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ होती है और ये कर्जा दर कर्जा, हमारे वॉचमैन थे, उनके वालिद ने 20,000 रुपये लिए और वो चक्रवृद्धि ब्याज अदाफ और मुदाफ ब्याज चढ़ता गया, सूद चढ़ता गया, तो 10 लाख रुपये इनके पास से मांगे बैंक वालों ने, फिर उसके आधे कर दिए। ये देखा है ना अनुकिराना, ये जो सहकारी बैंकें हैं, अभी हिंदुस्तान में एक नया खाता खुला है, सहकारी खाता, अमित शाह के मातहत, और इसी के ऊपर शरद पवार को सबसे ज़्यादा करा है। इसलिए कि महाराष्ट्र किसान वाले लोग हैं, काश्तकार लोग हैं, इन्होंने कहा कि हुकूमत की तहवील में चला जाएगा तो हमारे पास नहीं रहेगा, तो हमारी सहकारी बैंकें, ये सहकारी बैंकें वही कोऑपरेटिव बैंक, उसको अलग अलग शक्लें भी बनाई जाती है। लेकिन देहातों में जहाँ काश्तकारों को ज़रूरत पड़ती है कर्जे की, तो उमूमी तौर पर वहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ ही होती हैं, कोऑपरेटिव बैंकें होती हैं। ये भी जो शेयर वाला और ये जो प्लॉट खरीदने के होते हैं, उसकी कीमत भी थोड़ी, प्लॉट की तो खैर जो कीमत वो मार्केट वैल्यू पर चलती है, लेकिन उसके जो सरकारी दस्तावेजात बनाने होते हैं इसमें ड्यूटी वहाँ नहीं लगती। लेकिन अब वो भी आ रहा है नया कानून, ये हुकूमत जो है ना आके लगाई हुई है, कहाँ से रुपया लाए। तो जितने लोगों ने 1981 से लेकर अब तक किया है, लेकिन उसके बाद फिर दूसरा आदमी ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त की कि जब गवर्नमेंट ने ये मरतबा, अगली गवर्नमेंट ने ये कानून पास करके सबको माफ़ कर दिया था, फिर नए सिरे से कहाँ से कानून आया? कानून तो नया बनता है, आप पुराने लोगों को लगाकर लंबा चौड़ा, तो अभी कोर्ट में पड़ा हुआ है, हाईकोर्ट में गुजरात है। तो इन्वेस्टमेंट बैंक ये सबसे बुनियादी बैंक है, वो बैंकें जो कारोबार ही के लिए लगी हुई है। अब इन्वेस्टमेंट बैंक में उमूमी तौर पर मौलाना जैसे फरमाते हैं कि ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जैसा नहीं होता है, बल्कि एफडी, फिक्स डिपॉजिट, आप रकम लगाओ 5 साल में आपको डबल देंगे, कारोबार करेंगे, किसी को कर्जे पर सूद पर देंगे, जो भी करे बैंक। तो ये बैंक में एफडी, ये इन्वेस्टमेंट बैंक कहा जाता है। इस्लाम में ये जायज़ नहीं है इस तरह की चीज़ें, लेकिन है दुनिया भर के अंदर इन्वेस्टमेंट बैंकें चलती है। अफीली बतलाई कमर्शियल बैंक, तमाम बैंकों का दायरा महदूद होता है, उनकी अपनी कुछ पॉलिसी होती है, हुकूमत की तरफ से इनको सारे इख्तियारात मुकम्मल नहीं दिए जाते, और अगर गलत किया तो पकड़ भी हो सकती है, होती नहीं है, नामालियाती बात था, तो उसकी बैंक को पकड़ा जाता है कि इतनी लंबी चौड़ी रकम एक आदमी को कैसे दे दी। कमर्शियल बैंक, ये बैंक छोटी छोटी कारोबार करती है। पहला जो ऊपर आया इन्वेस्टमेंट बैंक और ये कमर्शियल बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक में तो उमूमन सरमायादार लोग अपनी रकम लगाते हैं, अगर सरमायादार जल्दी बैंकों में रुपये नहीं रखते, लेकिन कहीं कोई मजबूरी आ गई, परेशानी आ गई, तो फिर बैंकों में ये रकम एफडी के लिए रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट के तौर पर। कमर्शियल बैंक में भी इसी तरीके से होता है, लेकिन इसका नाम ही कमर्शियल रखना है, आम तमाम अफराद को रखना है। एफडी में हो सकता है कि इतनी रकम ही जमा करवाई जाए, इससे कम की एफडी हम लेते हैं, लेकिन कमर्शियल में उमूमन नहीं होता है। जितनी भी रकम लगाओ कारोबार के लिए, है दोनों कारोबार, इसमें भी तमलील होता है, लेकिन चूँकि कमर्शियल बैंक में कोई मखसूस शौबे के साथ नहीं है, यानी इतना उमूमी बड़ा बैंक है इस एतबार से
کہ آپ جس کے لیے بھی ایف ڈی کے لیے رکھو اور کسی کاروبار کے لیے رکھو تو انویسٹمنٹ آپ جس طریقے کا بھی کرنا چاہیں اس بینک کے اندر یہ عمومی ہے، اس لیے اس کو کمرشیل رکھیں۔ پہلے کو انویسٹمنٹ اس لیے کہا کہ اس میں آپ اپنے روپئے کو مخصوص ایف ڈی کے لیے رکھتے ہیں، یا ایف ڈی کے علاوہ کے لیے بھی رکھو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، انویسٹمنٹ میں اور کمرشیل میں۔ درآمد برآمد میں بینک کا کردار۔ اور بینک دوسری قسم ہے مولانا نے جب لکھا اس کے بعد سے بینکوں میں روزانہ ترقی ہوتی رہتی ہے، تنزل بھی ہوتا ہے، نئے نئے قانون بنتے ہی رہتے ہیں، اتنی ہی قسم کی بینکیں نہیں ہیں۔ یہ عمومی مولانا نے اپنے زمانے میں جو چلا تھا وہ اب آپ جب آج کا دیکھیں گے تو نئی چیزیں بھی آئیں گی۔ درآمد برآمد بینک کا اس کردار۔ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بینک کا جو سسٹم ہوتا ہے مفتی کو اس کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر فتویٰ دینا ہوتا ہے کہ آخر اس بینک میں کیا کیا جاتا ہے۔ صاحب سے یہی پوچھا جائے کہ بینک آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، کیا شرطیں رکھتی ہے، اسی کی روشنی میں آپ جواب دیں۔ بینک کے وظائف میں یہ بھی داخل ہے کہ بینک بین الاقوامی تجارت یعنی درآمد و برآمد میں ایک لازمی ذریعہ ہے۔ بینک کی وکالت اور معرفت کے بغیر برآمد درآمد ممکن نہیں۔ برآمد درآمد، کسی ملک سے کوئی چیز لانا اس کو برآمد کہتے ہیں۔ درآمد اتنے یہاں لانا اور برآمد دوسری جگہ بیچنا، امپورٹ اور ایکسپورٹ۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب چیز آئی تو امپورٹ کہا جائے گا، اور آپ بھیجیں گے اپنا مال دوسری جگہ تو لکھا ہوا ہوتا ہے امپورٹ مال ہے، دوسری جگہ تیار کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں ہی کچھ مال تیار ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں ملتے، دنیا کی دوسری کسی جگہ کسی ملک کو ملتے ہیں، وہ اچھا مال تیار ہوتا ہے، جانتے ہیں کہ یہاں والے کم خریدیں گے کم نفع ملے گا، ارے کم خریدیں گے نہیں نفع بھی۔ ہم لوگ گئے ایک مرتبہ سعودی عربیہ عمرہ کے لیے، ہمارے گاؤں کے ایک مولانا تھے، انہوں نے مولانا کے خاندان صاحب نے مولانا وزیر صاحب ہم لوگ سب ساتھ میں تھے، انہوں نے مارشل کمپنی میں کام کرتے تھے، انہوں نے وہاں کے اندر کی بنیان دی ہے سب کو، اور وہ فٹ بنیان ہوتے تھے، اور میں ایسا نہیں پہنتا ہوں ایسے ہی گلے میں پھانسا، تو ہم نے اس کو توڑا، اندر سے میری انڈیا نکلا، اندر کے یعنی انڈیا اتنا بڑا نہیں ہے کہ بیچارے کے مال کو فورن کے اندر اتنی پذیر آئی ہو، اس نے اندر چھپا کر رکھتے ہیں، لیکن مال اچھا تھا، اندر اس لیے چھپایا کہ ایک دم سے جائے تو کوئی جلدی سے، یا مارشل کمپنی نے چھپایا بنوایا انڈیا میں، بڑی ہے یوروپ کی کمپنی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب کوئی شخص دوسرے ملک سے کوئی چیز درآمد کرنا چاہتا ہے تو دوسرے ملک کا تاجر اس بات کا اطمینان چاہتا ہے کہ جب میں مطلوبہ سامان خریدار کو بھیجوں گا تو وہ واقعتاً قیمت کی ادائیگی کر دے گا، لہذا درآمد کنندہ برآمد کنندہ کو اعتماد دلانے کے لیے بینک سے ایک ضمانت نامہ حاصل کرتا ہے، جس میں بینک بیچنے والے کو اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ یہ چیز فراست کو فروخت کر دی جائے تو ادائیگی کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ اس کو عربی میں خطاب الضمان یا خطاب الاعتماد کہتے ہیں اور انگریزی میں لیٹر آف کریڈٹ کہتے ہیں، آسانی کے لیے ایل سی کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ ضمانت نامہ حاصل کرنے کو اردو میں ایل سی کھلوانا اور عربی میں فتح الاعتماد کہتے ہیں۔ بینک ایل سی کھول کر برآمد کنندہ کے بینک کو بیچ دیتا ہے، برآمد کنندہ کے بینک کو نیگوٹیٹنگ بینک کہتے ہیں۔ ایل سی پہنچنے کے بعد وہاں سے مال جہاز میں بک قرار دیا جاتا ہے اور جہازرہ کمپنی مال بک ہونے کی رسید جاری کرتی ہے۔ اس رسید کو عربی میں بول رسید الشحن اور انگریزی میں بل آف لیڈنگ کہتے ہیں۔ برآمد کنندہ کا بینک یہ بل آف لیڈنگ بمع متعلقہ کاغذات کے ایل سی کھولنے والے بینک کو بیچتا ہے۔ درآمد کنندہ اپنے بینک سے یہ کاغذ وصول کر کے ایل سی سے اس کی مطابقت کرتا ہے۔ ان کاغذات میں مال کی جو تفصیل لکھی گئی ہے وہ آرڈر کے خلاف ہو تو کاغذات واپس کر دیے جاتے ہیں، اگر کاغذات کی تفصیل ایل سی کے موافق ہو تو یہ کاغذات دکھا کر بندرگاہ سے مال وصول کیا جاتا ہے، اور بینک عموماً یہ کاغذات درآمد کنندہ کو اس وقت دیتا ہے جب وہ قیمت کی ادائیگی کر دے۔ ادائیگی کے لیے بھی بینک اور درآمد کنندہ کے درمیان مختلف معاہدے ہوتے ہیں، کبھی درآمد کنندہ ایل سی کھلواتے وقت ہی پوری رقم کی ادائیگی کر دیتا ہے، اس صورت کو اصطلاح میں یہ کہا جاتا ہے کہ فل مارجن پر ایل سی کھلوائی گئی ہے، عربی میں اس کو فتح الاعتماد بغطاء کامل کہتے ہیں۔ کبھی ساری ادائیگی بینک سے کاغذات چھڑوانے کے وقت ہوتی ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ زیرو مارجن پر ایل سی کھلوائی گئی۔ کبھی ایل سی کھولنے کے وقت تھوڑی ادائیگی کی جاتی ہے، اس صورت میں کل رقم کا جتنا فیصد ادا کیا گیا اتنے ہی فیصد مارجن پر ایل سی کھولنا کہتے ہیں۔ مثلاً کل قیمت کا 25% حصہ ایل سی کھلواتے وقت بینک میں جمع کرا دیا گیا تو کہا جائے گا کہ یہ ایل سی 25% مارجن پر کھلوائی گئی ہے۔ کبھی یہ معاہدہ بھی ہوتا ہے کہ کاغذات آنے پر بینک اپنے پاس سے ادائیگی کر دے گا اور درآمد کنندہ ایک معین مدت کے بعد ادائیگی کرے گا، اس صورت میں بینک کا قرض درآمد کنندہ کے ذمہ ہو جاتا ہے جس پر عموماً وہ سود لیتا ہے۔ اب یہ ہوا ہے جس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ کو کاروبار دنیا میں بہت پھیل چکا ہے، پہلے بھی لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے تھے، کاروبار ہوتا تھا، کبھی کاروبار میں گڑبڑ بھی ہوتی تھی، جانا آدمی تجارت کے اندر کاروبار میں آیا، 2-4 مرتبہ اعتماد میں لے لیا اور اچانک پھر دھماکہ بول کے کاروبار سے چلا گیا۔ اب دنیا میں ایسا ابھی بھی ہو رہا ہے، لیکن اس سے بچنے کے لیے لوگوں نے ایک نئی راہ نکالی اور بینک نے خود کہا کہ ہم تشریف لا رہے ہیں،
दोनों के दरमियान निकाह करवाने के लिए, इसके साथ भी मुआहदा होगा। अब कभी दरामद के लिए और कभी बरामद के लिए बैंक दोनों में जिम्मेदारी अदा करता है, लेकिन दोनों में अलग अलग नौइयत की उसकी जिम्मेदारी है। उसको थोड़ा समझना होता है। इस एतबार से दरामद बरामद में बैंक के अलग अलग वजीफे होने से मसले में भी फर्क पड़ता है। दुनिया भर में अब यह है कि कोई भी कंपनी कोई माल तैयार करती है और फिर दूसरे मुल्क में उसको भेजना होता है। माल तैयार करने के लिए भी रुपया चाहिए। मसलन मलेशिया वाले को हमने ऑर्डर दिया कि हमें फलानी चीज़ ये चाहिए, तो उसको वहाँ पर अगर उसके पास कैश है तो अपनी जगह पर, लेकिन कैश से कारोबार करते नहीं है, बैंक से लोन ही लेते हैं। अब वो बैंक को एतमाद में दिलाता है, अपने बैंक को। ये कहता है कि मेरे पास फलाना ऑर्डर आया है और माल तैयार करना है, तो बैंक उसको कहेगी कि हम आपको कर्जा दे दें सूद के ऊपर, जो कुछ भी इनका आपस का मामला। मतलब ये है कि बैंक दर आमद और बरामद। इसी तरीके से यहाँ वाले ने माल मंगवाया, अब उसको पैसे तो वहाँ देने हैं, इसके पास भी इतने कैश नहीं है या कैश रखना नहीं चाहते अदायगी के लिए, कैश में टैक्स आता है। ठीक तो ये दूसरा है कि ताजिर लोग अपनी रकम से धंधे नहीं करते। बैंकों का 15%, 10% सूद दे दिया और पूरे साल बैंक का रुपया इस्तेमाल करते रहो। हम अगर अपनी तरफ से रुपया देंगे तो हमारा इतना रुपया एक कारोबार के अंदर दामित हो गया, मुंजमिद हो गया, और बस इतना ही, फिर हमें नफा नहीं मिलता है। इसके बजाय ये सूद के ऊपर रकमें लंबी लंबी लेते हैं और 15%, 20% सूद देकर अपनी रकम अलग जगह पर रखते हैं। ये बड़े ताजिरों की बात करता हूँ। छोटा ताजिर तो यही चाहता है कि मैं कैश से कारोबार करूँ ताकि मेरे इंतकाल के बाद अचानक मेरी औलाद के लिए परेशानी न हो और मैं खुद भी अपने कारोबार को अच्छी तरीके से चला सकूँ। इसलिए कि उधार जब भी होगा तो उसके ऊपर ज़्यादा रकम ही देनी पड़ती है। इजारत करते हैं, आप माल खरीदते हैं तो अभी नकद की कैश कीमत अलग, कैश पेमेंट अलग होता है और उधार पेमेंट कुछ न कुछ अलग ही हो जाता है। इसलिए हर ताजिर ये चाहता है। लेकिन अब इन्होंने एक नई शक्ल निकाली कि कैश पेमेंट ही हो रहा है लेकिन वाया पेमेंट आपकी तरफ से नहीं, इसलिए आपका रुपया नहीं जाएगा। बैंक ये चाहती है कि कहाँ जाएगा ये, हमें तो सालाना 15%, 20% क्या मिल रहा है, सूद मिल रहा है। इस तरीके से लाखों इनके इस तरीके के बैंक के खातेदार होते हैं और वो इस तरीके से रुपया लेकर बैंकों से कारोबार करते हैं। दूसरी बात है कि बैंक में जो बैठा हुआ मैंने ये है अमला, ये तो मजबूत मुलाजिम है, इसलिए अगर इन्होंने कहीं कुछ कर भी दिया तो ये तो चले जाएंगे। मालिया गया तो अब ये तहकीक नहीं हो रही कि मालिया को देने वाला ये कौन सा बैंक, उसका कौन सा मैनेजर था जिसने इतने लंबे चौड़े रुपये मालूम है नहीं मालिया का नाम, पूछ रहा उनको पूछ ले रहा ना मालूम हो। ये दोनों पक्के ताजिर मालूम होते हैं, गुजरा वाले ने। तो बहुत में होती है हराजी, हुकूमत जो साल भर में साधन ले लेती है, निकल लेती है, फिर उसके मालिक आते नहीं है तो हुकूमत भी यहाँ उसकी हराजी करती है। और उसकी तो कम, लेकिन आते हैं गुजरा शहर से ही नसीब में नज़र आते हैं बहुत सारे लोग। तो कहीं इज्तिमा हो ऐसा लग रहा है तो पता चल जाएगा कि वो लोग ही तशरीफ लाते हैं। बरूद वालों को इंटरेस्ट इतना नहीं है, ये लोग इसमें लगे हुए हैं कारोबार में, तो इनको मालूम है कीमत भी क्या देने की, इस तरीके से खरीदने का, हराजी में कैसे बोलने का, ये सब उसूल में आधार है हर चीज़ की। बिल्कुल फन दिन हर फन का आदमी होता है। तो अब बैंक इस तरीके से कारोबार में आ गया है कि बैंक ये कह रहा है कि हम कारोबार नहीं करते, लेकिन बैंक के बगैर कारोबार नहीं होता। ये सूरी कारोबार दोनों के साथ इस तरह करते हैं। चूंकि कारोबार इंटरनेशनल हो गया और एक दूसरे को पहचानते नहीं, दो मुल्क है, दो मुल्कों के उसूल और आदाब अलग अलग है। फिर इंडियन करेंसी इंडिया के बाहर चलेगी नहीं, मलेशियन करेंसी वहाँ से यहाँ नहीं आएगी, इसलिए इंटरनेशनल करेंसी को भी इनको बीच में रखना होगा। इन सारी वजूहात से वो किसको रख देते हैं, बैंक का रखना लाजिमी। इसके बगैर आपका कारोबार मुमकिन ही नहीं रहा। इस तरीके से जकल लिया है लोगों को यहूदियों ने। तो अब ये है कि सबसे पहले तो ताजिर को कोई माल खरीदना है या बेचना है तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एलसी। ये एलसी दोनों ताजिर दरामद बरामद दोनों को ज़रूरी होगी, इसलिए कि आप हर वक्त दरामद ही जुड़े रहेंगे, बरामद भी तो होंगे आप कहीं बेचने वाले। आयात में निकास, गुजराती भी ये बोलते हैं, आयात बाहर से मंगवाना और निकास यहाँ से जाएगी चीज़। तो ये दोनों ज़रूरी। इस एतबार से हर एक को बैंक से कुछ न कुछ वास्ता पड़ता है। अब
वो ताजिर जब आप उससे कारोबार करेंगे, फौरन आपने नेट पर देख लिया कि फलानी कंपनी का माल अच्छा बनता है, इस तरीके से बनता है, या आपको मालूम हुआ तो आप उस कंपनी से राब्ता करेंगे, हमें आपसे माल चाहिए। वो कंपनी सबसे पहले आपसे कहेगी एलसी है आपके पास, आप उसके पास से खरीदेंगे, आप उसको पूछेंगे कि एलसी है आपके पास, तो एलसी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ता है इसके बगैर, इसलिए कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक आपको लेकर दे देगी, सामने वाले को भी और आपको भी। वो पैसे खोटे नहीं करेगा, इसकी बैंक आपको जिम्मेदारी दे रहा है, आप नहीं करेंगे, इसकी जिम्मेदारी उसको मिल रही है। तो दोनों तरफ से बैंक नेगोशिएशन करके दोनों के पास से इस तरीके से करते हैं। इसलिए आज की दुनिया में जब भी दो कारोबारी कारोबार करेंगे, फौरन उसके बाद पूछा जाएगा आपके पास एलसी ऐसी खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ही लेते हैं। ये गोया के एक किस्म का सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट इसको मुख्तसर एलसी कहते हैं, असल है लेटर ऑफ क्रेडिट। बैंक आपकी क्रेडिट ले रहा है कि सामने वाले को तो आप पर भरोसा नहीं है, बैंक आपका भरोसा ले रहा है, इसलिए ये लेटर ऑफ क्रेडिट आपको देकर सामने वाले को मुतमईन करता है, उसको देकर आपको मुतमईन करता है। इसलिए कारोबारी दुनिया में सबसे पहले एलसी खाता खुलवाना जरूरी होता है। वो इतना लाजिमी हो गया है कि आप पूछो ना पूछो उसके पास होता ही। इस रसीद को अर्जी में और दूसरा होता है बिल ऑफ लेडिंग। ये दूसरा मसला है। आपने माल तो एक दूसरे के साथ मामला हो गया, अब एयरपोर्ट पर जब माल आपका जाएगा तो आपका माल वहां से यहाँ आएगा, इसके लिए भी आपको बिल ऑफ लेडिंग, माल का लोड हो रहा है, वहां से यहाँ आ रहा है या यहाँ से वहां जा रहा है, तो एयरपोर्ट वाले, ट्रांसपोर्टेशन वाले, इन सब के साथ आपका मामला, इसलिए के रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन वाले को पकड़ लिया और चीज ऐसी है जो गड़बड़ वाली है, क्या एक है पुलिस वालों को पैसे खाना है, देखिए ना ट्रकें रोक कर क्या करते हैं, कोई ना कोई गलती निकालते हैं। खैर ये तो छोटी गलतियां हुई जो पैसे कमाने की, लेकिन कभी माल ऐसा है कि जो मुल्क में एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुँचाना नाजायज है, वो चीज़ उस मुल्क में सही नहीं है, लोगों के थे, हुकूमत के यहाँ गैर कानूनी है, अब वो माल आ गया। इस तरह के बहुत सारे मसाइल आते हैं, इसलिए हुकूमतों ने बिल ऑफ लेडिंग का भी लज़ूम कर दिया। तरफ पकड़ा जाएगा, कहाँ ले जा रहे हो, वहां से कहाँ जाएगा, मैं नहीं जानता, ये कागज देखिए, वो इतना कर, इसलिए कि उसकी तो जिम्मेदारी वहां तक। अब एयरपोर्ट वाले वो कागजात उसको बतलाएंगे, हाँ हमारे पास इसकी अर्जी आ गई है और ये माल उसका ही है। फिर यहाँ से एयर में चढ़ाएंगे तो उस वक्त कभी, या शिप में चढ़ा रहे हैं तो उस वक्त कभी उनको वो कागज चाहिए। तो हर जगह पर ये कागज चाहिए, ये एक अलग चीज़ है। पहले तो आप तिजारत में लगे हैं, इसलिए आपके लिए एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, और फिर जब माल का इधर से उधर करवाना होगा तो आपको इसके लिए भी, इसलिए कि कभी ये होगा कि माल एक एयरपोर्ट से दूसरी जगह पर आए, कभी एक माल एक जगह पहुंचाना था, उसकी जगह दूसरे एयरपोर्ट पर खाली कर दिया, उसने खाली लोग भी वहाँ खाली हो, ले जाना है दूसरे मुल्कों में। कभी ऐसा होता है कि एकदम इतना फास्ट होता है, हम लोग साउथ अफ्रीका गए तो इथियोपिया एयरपोर्ट पर उतारा गया और अंदर से अंदर ही दूसरी जगह ले गए और वहाँ से दिखा दिया, तो वो माल हमारा यहाँ उतरेगा, इथियोपिया का एयर है, फिर दूसरा एयर है वहाँ से साउथ अफ्रीका का, इस तरीके से मीरात का होता है। तो कभी बहुत जल्दी हो या एयर लेट हो जाए और आपको दूसरा कनेक्टेड एयर पकड़ना है, तो वो जो सामान आपका होगा वो दूसरे एयर में वो भेजेंगे। इस तरीके के भी मसाइल है। तो सामान हमारा खाने पीने को इस तरीके से, ये शिप में भी इस तरीके से कभी हो सकता है, एयर में भी होता है। तो अब वहाँ भरा हुआ है तो आपके पास वो बड़ा चार्ज लेंगे, लेकिन जब आपने इनके पास बिल ऑफ लेडिंग ले लिया होगा तो आपके साथ उसूल और ज़ाब्ते से वो चलेंगे। तमीज़ आपका है तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए 100 रुपये होते हो तो 100 रुपये लें, और इसके बजाय जब आपके पास ये बिल होगा तो आपके पास से वही कानूनी जो बैनुल अक़वामी है उस कानून के मुताबिक वो आपसे लेंगे, इसलिए रजिस्ट्रार होना जरूरी है। आगे इसके बाद बिल ऑफ लेडिंग का मसला मौलाना ने तो जिक्र किया, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि एक बात दूसरी है, बैंक कैसे हमारे साथ आया। एक तो ये है कि लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक ने दिया, आगे तिजारत में अगर रुपये पैसे की या सामान की आपने वहाँ से माल मंगवाया, जो आपने ऑर्डर दिया था उसके मुताबिक सैंपल जो आपने दिया या उन्होंने बना कर दिया उसके मुताबिक वो ऑर्डर वाला माल आया है, तभी आप वसूल करेंगे, वरना वसूल। तो अब इसकी जिम्मेदारी किसकी, उसकी भी बैंक जिम्मेदारी लेता है कि वहाँ से जो माल आए, बैंक सब रुपये चढ़ाएगा इसके ऊपर, लेकिन आप भी राजी है, टमाटी मंगाए हुए आ जाए, बता का आ भी जाए,
दूसरी चीज आ जाए, या खास करके कंपनी के पास जो माल बनवाया, जैसा आपने माल दिया इसमें थोड़ा कुछ कम कर दिया, 20-20 का फर्क कर दिया, बिल्कुल 100% गड़बड़ हुई तो कोई नहीं लेगा। तो उसने धागे जो इस्तेमाल करने थे सब के अंदर इसमें थोड़े कम इस्तेमाल कर लिए, कपड़ा बनाना उसके अंदर जो चीज डालनी है, इस तरीके से हर चीज के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ की और आपको वो माल पसंद नहीं है। तो अब वहां की जो बैंक होगी वो पहले माल देखेगी, इसलिए जब आएगा किस पर, इंडिया आ गया, यहाँ की बैंक ने वो माल देखा और वो सही नहीं है तो फिर वो माल वापस जाएगा। आपको बैंक इत्मीनान दिलाता है कि जैसा आपने मांगा था इस तरह नहीं आया, इसलिए हमने वो माल क्या कर दिया, या तो आपको वहाँ बुला ले या उनका जो आदमी वहाँ होता है एयरपोर्ट के ऊपर वो ये सब कुछ करता है। तमाम बैंकों के इस तरीके के जो माल सप्लाई करते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह के बीच में जो रहती है बैंक, उनके आदमी वहाँ हर जगह पर दूसरे को रोजाना, इनका तो हर मुल्क से कारोबार, तो हिंदुस्तान जैसा मुल्क, इतनी बड़ी आबादी, इसलिए यहाँ की ज़रूरियात के हिसाब से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह दोनों चीज़ें बनाने वाले भी ज़्यादा हैं, खरीदने वाले भी, इसलिए रोजाना इस तरह की चीज़ें चलती है। तो बैंक एक तो उसकी भी जिम्मेदारी है। दूसरा मसला आया कि जब आपने ऑर्डर दिया तो मुझे 10 लाख रुपए की इतनी चीज़ें चाहिए, मतलब आपने जो ऑर्डर दिया माल बनाने का उसकी कीमत हो रही है 10 लाख रुपये मिसाल के तौर पर। अब उसके पास कैश नहीं है, वो अपनी बैंक के पास जाएगा और ये कहेगा कि फलानी जगह से मुझे ऑर्डर दिया है लेकिन मेरे पास इतनी रकम नहीं है, या है तो दूसरी जगह लगी हुई है, या वो लगाना नहीं चाहता है कैश। बैंक उसको कहेगी, उसके साथ मामला करेगी कि हम दे देते हैं इतने सरे सूद के साथ। इस्लामी बैंक होगी तो नफ़ा की बात करेगी, लेकिन इस्लाम लग गई है, क्या आया, तालिबान की हुकूमत आ रही है तो वो इस्लामी इक़्तिसादियात चाइना से करने वाला है। तो उस पर एक साहब ने पाकिस्तानी के इस्लामी के हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 99 पॉइंट इस्लामी इक़्तिसादियात नहीं है, नाम चाहे बोलते रहे, यानी कोई बैंक ऐसी नहीं है जो सही इस्लामी उसूल और ज़ाब्तों से चलती है, नाम चाहे इस्लामी बैंकों का। जब यहाँ का ये हाल है अरब मुल्कों का भी यही हाल है, मौलाना उसका रोना आगे रोएंगे किस तरीके से वहाँ मुराबाहा की शक्लें बनती है। चीज़ आपको खरीदने और बेचने के सौदे होते हैं, चीज़ तो पहले से मुश्तरी के पास होती है, लेकिन सौदे होते हैं तो किसके सौदे, तो मुश्तरी के पास ही दिया, वो शीरा हो ही नहीं रहा, लेकिन कागजी तौर पर वो शीरा फसले के 3 पैर कहा था, मैंने आपको 4 होते हैं लेकिन 1 पैर ही गाइड करते हैं, इस तरीके से कारोबार करते हैं इस्लामी निज़ाम में भी। तो बैंक दोनों तरफ से ये इत्मीनान दिलाती है। अब ये बैंक के पास गया, बैंक उससे मामला करती है। इसी तरीके से आपको जब रकम अदा करनी है, अभी कैश नहीं है, माल आ गया या माल की जो तारीख थी उस पर आपको रकम जमा करवानी थी बैंक में, आपने अपनी बैंक आपकी की बैंक से जाएगा, आप बैंक के पास गए और ये कहा कि मेरे पास तो रुपया नहीं है इतना, या इतना है 50% है, 50 आप दो, उसके ऊपर वो सरे सूद लेगी। और अगर कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बैंक का वास्ता उनको महज उसूल और कानून की वजह से करना पड़ता है, कैश है इनके पास लेकिन महज इसलिए, तो वो बैंक को पूरी रकम जमा करवा देगी, शहर से माल आने वाला है, ये पूरी रकम आपको मैंने जमा करवा दी और जब आए तो ये माल मेरा मिल जाए मुझे, ये फुल मार्जिन इसको बोलते हैं, पूरा का ये मुकम्मल तौर पर आपने उनके पास से कोई चीज़ नहीं खरीद ली। हाँ, बैंक का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मसला है, बीच में बैंक ने जो कुछ काम काज किए उसके लिए वो सर्विस चार्ज आपके पास से ले सकती है, लेकिन बैंक के पास से आपने रुपया कर्ज के तौर पर नहीं लिया, सूद ही नहीं लिया, इसी तरह उसने भी न लिया हो, आपने भी न लिया हो, तो ये इसको फुल मार्जिन, ये एक इस्तिलाह है, वो उसको बोला जाए, ये बहुत ज़रूरी है इस्तिलाहें जानना। एक मरतबा एक साथ इंग्लैंड आए थे और दूसरे से कारोबार की बात कर रहे थे, एलसी का बोल रहे थे, और वो यहाँ से गए हुए, तो मैंने उनको पूछा कि एलसी क्या होता है, मुझे तो मालूम था, लेकिन मैंने उनको पूछने के लिए कि एलसी किसको कहते हैं, तो बेचारे तो और भी तो नए ताजीर थे, यहाँ से गए हुए थे और ज़्यादा इतनी ये नहीं थी। मैंने उनको कहा कि ये बात नहीं है, एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट, और फिर इसका मतलब ये हुआ कि बैंक आपके साथ ये मामला करते हैं, तो आप लोगों को भी मालूम है बोल भी, इसीलिए तो हुकूमत चलाएंगे, तो बैठेंगे नहीं सब मुल्ला, तो इसी तरीके से चलेगी वो हुकूमत, तो ये सब जानते हैं। हमारे गांव के मुतवल्ली साहब थे, बड़ी उम्र के, वो कहते थे कि ये मौलवी लोग गुलिस्तान और दोस्तान पढ़ते हैं तो बहुत होशियार होते हैं, तो ज़माना था गुलिस्तान दोस्ता का, इसलिए उन्होंने कहा आप तो बगैर पढ़े हुए माँ के पेट से होशियारी करते हैं, यही मशीनरी से होशियार होके आते हैं। तो बिल ऑफ लेडिंग बैंक को, तो ये बैंक कभी आपके साथ या आपके जेब के हिसाब से है, उसके जेब के हिसाब से है, वो जिस तरीके से
उनसे बातचीत करें बैंक से कि मैं 25% देता हूँ, 75% आप दो, तो उसके हिसाब से सूद लेना है। और अगर मुकम्मल आपने 100% पैसे दिए तो बैंक खाली अपना सर्विस चार्ज देकर आपसे अलग हो जाएगी, इसलिए बैंक का कुछ गया नहीं। अब यकीनी बात है कि 25% लेंगे तो शरही सूद कम होगा, 75% लेंगे तो शरही सूद वो ज़्यादा तय करेगी ताकि आपसे वसूल करे। एलसी पर फीस। बैंक को एलसी खोलने में जो खिदमत अदा करनी पड़ती है उन पर बैंक मुआवजा लेता है। दरामद कुनिंदा की बैंक की 3 खिदमत होती है। नंबर 1, वकालत यानी एजेंसी, यानी बैंक दरामद कुनिंदा का वकील बनकर बरामद कुनिंदा से मामलात करता है। खरीदार के कागज पर बरामद कुनिंदा को भेजता है और बरामद कुनिंदा के भेजे हुए कागज वकील दरामद कुनिंदा को सुपुर्द करता है। इन खिदमत पर बैंक उजरत लेता है। पहला बैंक का काम यही है कि दोनों के कागजात एक दूसरे के ट्रांसफर वो करती है। नंबर 2, जमानत यानी गारंटी, यानी इस बात की जमानत लेता है कि अगर खरीदार ने रकम अदा न की तो वो रकम अदा करेगा। इस पर भी उजरत लेता है। सब समझने का है, इसलिए कि कुछ चीजें इस्लाम में जायज और कुछ चीजें जायज नहीं। नंबर 3, कर्ज यानी क्रेडिट, यानी जब ताजिर कीमत की अदायगी फौरन न करे और बैंक उसकी तरफ से अदायगी कर दे तो ये रकम नहीं दे रहे हैं, अभी तो समझा रहे हैं, आगे आ रहा है। तो ये रकम दरामद कुनिंदा के जिम्मे उसका कर्ज हो जाती है जिस पर वो दरामद कुनिंदा से सूद वसूल करता है। कर्ज जब ताजिर कीमत की अदायगी फौरन नहीं कर रहा और बैंक इसकी तरफ से अदायगी कर रही है तो यकीनी बात है कि अब क्या होगा, उसने अदा नहीं किया, उसकी जिम्मे सूद के साथ अदा करना पड़ेगा। कर्जा दो नौयत का हो सकता है। कभी तो बाकायदा कर्जा लिया जाता है जबकि ये मुआहदा हो कि बर वक्त अदायगी बैंक करेगी और दरामद कुनिंदा उसके कुछ अरसे बाद बैंक करेगा और दरामद कुनिंदा उसके कुछ अरसा बाद बैंक को अदायगी करेगा। ये एक अलग मुआहदा होता है। एलसी की फीस का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता, उस पर अलग से बाकायदा शरह से सूद लिया जाता है। कभी बाकायदा तो कर्ज नहीं लिया जाता लेकिन खुद बखुद मामलात के दरमियान में बैंक का एलसी खुलवाने वाले के जिम्मे कर्ज हो जाता है। ये इस तरह होता है कि बैंक के साथ कर्जा जो होता है वो 2 किस्म का है। जैसे मैंने कहा 100% आपने सिर्फ क्या किया, पैसा पूरा अदा कर दिया और बैंक को सिर्फ बीच में रखा, तो बैंक का जो कुछ खर्चा है वो बैंक आपसे वसूल करे। लेकिन एक ये है कि कारोबार में आपको जरूरत पड़ी, जैसे 25%, 50%, तो बैंक उसके ऊपर ये भी कर्जा हुआ लेकिन वहाँ सूद है। कभी ये होता है कि बीच में कोई मामला ऐसे हो जाते हैं कि सूद शक्ल बनती है, उसी को समझाया। इस तरह होता है कि कभी एलसी खुलवाते वक्त पूरी अदायगी हो जाती है, उसको 100% शरह यानी मार्जिन पर एलसी खुलवाना कहते हैं। कभी कुछ अदायगी होती है, मसलन 25% की अदायगी पर एलसी खोली गई, उसको 25% शरह यानी मार्जिन पर एलसी खुलवाना कहेंगे। कभी एलसी खुलवाने के वक्त बिल्कुल अदायगी नहीं होती, उसको पूरा का पूरा कारोबार दूसरों के पैसों से ही करे। 1 करोड़ रुपए का कारोबार उससे किया, बैंक को कहा कि तुम दे दो, सूद भी इसी तरह तगड़ा आएगा, देना पड़ेगा। उसको जीरो मार्जिन पर एलसी खुलवाना कहते हैं। अब इस सूरत में जबकि अदायगी के बगैर या कुछ अदायगी पर एलसी खोली गई हो, कागज आते ही बैंक अदायगी कर देगा बशर्ते के सामान के कागज एलसी की शराइत के मुताबिक हो और कोई शराइत के मुताबिक कागजात है, यानी काम जो किया है आपने, जो ऑर्डर दिया है उसमें सामने वाले ने वही ऑर्डर वाला माल आपको दिया है, उसके कागजात देखने पड़ेंगे। आपने जो चीज मंगवाई वही है लिखी हुई कि कोई और है और कोई अदब मुखालफत न पाई गई हो, मगर दरामद कुनिंदा की तरफ से किसी वजह से अदायगी में चंदीन ताकीर हो जाती है। ऐसा होता है कि आपकी तरफ से ताकीर हुई, आपने कहा था कि मैं दे दूंगा लेकिन आपने उस वक्त पर वो पैसे अदा, तो अब यकीनन है कि बैंक क्या करेगी, जब बात करेंगे तो अदा कर देगी, ऐसे अदा नहीं करेगी वो आपका क्रेडिट देख कर करेगी। इसीलिए करंट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। आप इस तरह करते हैं कि नहीं, मतलब वीजा लेने के लिए अहमदाबाद गया तो घर की कोई नई बेटी हुई थी और जो मेरे कागजात थे उसके अंदर सेविंग अकाउंट भी था और करंट अकाउंट भी था। तो ताजी का यू तो फंड भेजा था तो करंट अकाउंट, उसमें पैसे नहीं थे, खाली पैसों की हेरफेर बदलाई थी जो खुलाने दिन इतने और थोड़े ही बाकी थे। उसने कहा बहुत कम है, मेरे का एक क्रेडिट अकाउंट ये करंट अकाउंट है, इसमें पैसे नहीं बदलाए जाते, इसमें पैसों का जो टर्न हो रहा है, आया नहीं गया उससे ताजिर को मोतबर समझा जाता है। इसलिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप ऊपर ₹1000 से मिलता है, आप वहाँ भेज दीजिए, यही कागजात चलेंगे। लेकिन वो नहीं थी, अभी बिल्कुल फ्रेश, इनका निज़ाम भी जान दी थी, लोग जो करेगी बेचारी हमदर्दी में कह रही थी कि ये आपने कागज रखा है तो इस कागज में तो एग्जाम का यही असर है, चाहे वो करंट अकाउंट है लेकिन करंट के मसले और होने। तो ये इस तरीके से भी होता है। करंट अकाउंट के अंदर कभी आपने पैसे अदा करने का मुकम्मल वादा किया लेकिन इत्तेफाक से किसी तरह आपसे पैसे नहीं भर पाए, या हिंदुस्तान है, बैंकों की छुट्टियां हैं, रजाएं हैं और माल पड़ा हुआ है एयरपोर्ट पर, तो यकीनन आपके ऊपर क्या होगा, चढ़ेगा। बैंक की तरफ से सूद वाला रकम वाला है तो रकम पर भी सूद चलेगा। मसलन इसलिए ताकीर हो गई कि बैंक की तरफ से राब्ता करने में ताकीर हो गई, ऐसे सूरत में उतने दिन का कर्जा खुद बखुद हो जाता है। इस कर्जे पर भी सूद लिया जाता है। लेंगे कर्जा भी है, कोई काम बगैर सूद के तो इनके यहाँ चलता ही नहीं।
दूसरी तरफ बरामद कुनिंदा का बैंक जमानत किसी चीज की नहीं देता। यहाँ बैंक के दो ही काम होते हैं जिन पर बैंक मुआवजा लेता है। नंबर 1 वकालत, नंबर 2 कर्ज। यहाँ कर्ज इस तरह होता है कि एलसी में कभी तो मुआवजा ये होता है कि कागजात अदायगी जरूरी होगी, उसको LCH साइन कहते हैं। इस सूरत में बरामद कुनिंदा के बैंक को कोई कर्ज नहीं देना पड़ता। कभी मुआवजा ये होता है कि कागजात पहुंचने के इतने दिन बाद खरीदार की तरफ से अदायगी होगी। तो ऐसे सूरत में अगर बरामद कुनिंदा का बैंक बरामद कुनिंदा ताजिर को फौरन अदायगी कर दी तो ये बैंक का बरामद कुनिंदा के जिम्मे कर्ज हो जाएगा। दरामद कुनिंदा के पास पहली बात थी बरामद, कोई माल मंगवा रहे हैं। इसी तरीके से दूसरी तरफ बरामद कुनिंदा का बैंक जमानत किसी चीज की नहीं देता है जो वहां से माल के। यहाँ बैंक के दो काम, बरामद कुनिंदा का बैंक और दरामद कुनिंदा, ये एक तो मौलाना ने उसूली चीज बताई और एक प्रैक्टिकल दूसरी चीज होती है। इसलिए तो ये जरूरी नहीं कि मौलाना ने जो लिखा वहाँ यही अब हो रहा हो। एक तो 25-30 साल हो गए किताब को और बैंकों के अंदर रोजाना नए नए कानून तब्दील होते रहते हैं। आम मतन ये होता है कि बरामद कुनिंदा जो किसी जगह माल पहुंचा रहा है, किसी जगह जा रहा है माल, तो उसको तो माल तो तैयार है उसके पास, इसलिए उमूमी तौर पर उसको जो बैंक की जरूरत पड़ती है वो वकालत और कर्ज की जरूरत पड़ती है। वकील बैंक को बनाए और कर्ज का भी, कर्ज कभी जरूरत पड़ी तो कर्ज अदा कर दे। कर्ज इस तरह होता है कि एलसी में कभी तो मुआवजा होता है कि कागजात आते ही अदायगी जरूरी हो जाएगी। फौरन कागज आए और हम उसको अदा करते हैं, एक तो उसको LCH साइन कहते हैं, फौरन। इस सूरत में बरामद कुनिंदा को बैंक को कोई कर्ज नहीं देना पड़ता है, उसके बैंक को उसको कोई कर्ज नहीं देना पड़ता है, इसलिए कि अदायगी का वक्त ऊपर लगा और उसी वक्त वो दे रहा है, मुआवजा ही है पहले से। कभी मुआवजा होता है कि कागज पहुंचने के इतने दिन के बाद, तो ऐसी सूरत में जितने दिन हुए इतने दिन का सजा उसको देना आएगा। दरामद कुनिंदा के पास कभी दरामद के लिए रकम नहीं होती या रकम तो होती है मगर वो उस रकम को दरामद पर लगाकर मुंजमिन नहीं करना चाहता, तो वो बैंक से कर्ज लेकर दरामद करता है। दरामद के लिए बैंक जो कर्ज देता है उसको अरबी में तमीलुल वारिदात और अंग्रेजी में इंपोर्ट फाइनेंसिंग कहते हैं। ऐसे ही बरामद के लिए भी बैंक से कर्ज लिया जाता है, यानी किसी ताजिर के पास बाहर के किसी मुल्क से अशिया की खरीदारी का ऑर्डर होता है, लेकिन वो अशिया तैयार या मुहैया करने के लिए उसे रकम की जरूरत होती है जो वो बैंक से कर्ज लेता है और कर्ज लेकर मतलूबा अशिया फराहम करके बरामद करता है। इस सूरत में बैंक बरामद कुनिंदा को जो कर्ज देता है उसको अरबी में तमीलुल सादिरात और अंग्रेजी में एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग कहते हैं और हुकूमत पर आमदाद की हौसला अफजाई करती है ताकि मुल्क का सामान बाहर फरोख्त हो। हुकूमत ये चाहती है कि हमारे मुल्क की चीजें बाहर जाए, कि एक तो दलील इसमें, लेकिन इस तरह नहीं कि मुल्क में नहीं आ रही है ना दूसरी जगह जाए, ये मुराद नहीं है। जैसे हिंदुस्तान जैसे तरक्की पसंद मुल्क कर रहे हैं, वो चीज अच्छी बनाते हैं लेकिन दूसरे मुल्क में एक्सपोर्ट वो कर देते हैं और हिंदुस्तान के भी बड़े मालदारों को खरीदी हो तो उनको मिलती है, नहीं है तो मुल्क में वो तिजारत नहीं चलती, वो क्वांटिटी में चलती है। ऐसा भी होता है, लेकिन हर माल में ऐसा नहीं। तो बरामदात किसी मुल्क का अपने मुल्क की चीज दूसरे मुल्क में भेजना ताकि उसको फॉरेन करेंसी मिले, डॉलर मिले, तो ये मुल्क के लिए बड़ा समझो। दूसरी बात ये समझी गई कि देखिए हमने हमारे मुल्क में इतनी चीज है कि दूसरी जगह पर हम भेज रहे हैं। कभी दादागिरी से अमरीका जैसा बरामद करता है कि ये खरीदना ही पड़ेगा। हिंदुस्तान में बादाम इतनी होती है जिसकी जरूरत फॉरेन की नहीं, लेकिन हिंदुस्तान को फलानी चीज खरीदनी है तो अमरीका कहता है कि हमारी बादाम भी खरीदो। हम कह रहे हैं कि कोर्ट में जाने से कचे हो आका बनने का मतलब ये है कि जो कहें वो। इस तरह की भी कभी होती है दरामद बरामद में भी। ये तो बरामद दरामद के सिलसिले में मुल्कों की पॉलिसियाँ, यहाँ गुफ्तगू बैंक की पॉलिसी भी हो रही है। तो इससे ज़र मुबदला मुल्क में आई। पाकिस्तान में भी बरामदत की हौसला अफजाई के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक स्कीम जारी किया जिसको एक्सपोर्ट रिफाइनेंसिंग यानी इआदतु तमील सादिरात कहते हैं। उसका तरीक़ेकार पहले ये था कि मरकजी बैंक ने मुल्क के कमर्शियल बैंक को ये हिदायत जारी की थी कि बरामदात के लिए दिए जाने वाले कर्जों पर सूद कम शरह से वसूल। इस तरह भी हो सकता है, जो ताजिर माल तैयार करता है और फॉरेन देता है, क्योंकि वो वहाँ से डॉलर लाता है, पाउंड लाता है और मुल्क को इसकी जरूरत है, इसलिए मुल्क को जब कारोबार करना है तो कैश उसके पास होते हैं, तो इसकी बुनियाद के ऊपर ये हमें फायदा दे रहा है, तो हम उसको क्या करें, दूसरों के पास से 8% सूद ले रहे हैं तो इसके पास से 6% ले, 2% कम कर दो, 100 रुपये में 2 रुपये कम हुए तो करोड़ों रुपये में अंदर बहुत ज्यादा हो गया, तो ये कुछ हो जाएगा। मसलन आम शरह सूद कम शरह सूद के साथ मिला तो कम पैसों में उसने माल तैयार कर दिया, कम यानी वही जो उसको कम देना पड़ा है। मसलन आम शरह सूद 25% होती है तो बरामदाती कर्जों पर 8% सूद लिया करे। इस तरह जो 15% किसको कहते हैं, 8%। हुकूमत जो करती है वो फीसद भी नहीं करती है, बल्कि ये कहती है कि शरह सूद आशारिया इतना
दशांश के अंदर भी कम, 1% भी नहीं, 1% का भी इतना 5, 25, 20, 50 इस तरीके से। इसलिए कि ये करोड़ों रुपये और हजारों लाखों लोगों के कारोबार में क्या हो जाता है, हुकूमत को बहुत खोज जाती है इसमें। इस तरह जो कमर्शियल बैंक कर्ज देगा, मरकजी बैंक उतनी ही रकम उस बैंक को दे देगा और 8% सूद में से 5% मरकजी बैंक लेगा और 3% सूद कमर्शियल बैंक का होगा। इस सूरत में इस तरीके से दोनों बैंकों को फायदा हुआ, आरबीआई को भी फायदा हुआ और इसके साथ साथ जो लोकल बैंक है उसको भी फायदा। इसको कहेंगे कि इसके पास शरह सूद कम लो, वो कहेगा कि मैं कम लूंगा तो मेरी बैंक को पहुंच जाएगी, तो कोई वादा नहीं। इसका जो ये है शरह सूद, उसके अंदर से इतना तुम्हारा और इतना हमारा होगा, इस तरीके से उसको भी राजी। या कभी ये कहेंगे कि तुम्हारा जो हमारे पास रकम जमा होती है एडवांस में जो रखनी पड़ती है ये 25% है, तो हम तुम्हारे पास से 20% और 5% तुमको कारोबार के लिए भी देते हैं। जब कारोबार खत्म हो तो फिर ये 25% दोबारा हो जाएगी, लेकिन अभी इतनी मुद्दत के लिए हम तुम्हारे पूरी जो रकम तुम्हारी हमारे पास है रकम का 25%, तो 20% ही जमा करवाओ और 5% कारोबार में लगाओ, और इसके बदले में तुम जिससे कारोबार करो उसका जो फॉरेन का तुम्हारा नीले करेंसी वाला वो हमारे पास है। इस सूरत में बैंकों को यह फायदा होता था कि उन्हें अपनी रकम लगाए बगैर 3% सूद मिल जाता था, क्योंकि कर्ज की रकम मरकजी बैंक ने मुहैया की थी। अब इसके तरीकेकार में ही तब्दीली हो गई है कि मरकजी बैंक कमर्शियल बैंक को इतनी रकम देने के बजाय उस बैंक के नाम उतनी रकम का डिपॉजिट अकाउंट खोल देता है। रकम नहीं देते, मौलाना जो लिखता है वो पहले था, अपने यहाँ भी हिंदुस्तान में भी रकम नहीं देते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रकम दे तो तुम कारोबार में तुमने पुराने को इतना शरह सूद कम किया तो हम कैश दें, ये यही शक्ल करते हैं कि तुम्हारे पास से हम दूसरे किसी चीज में तुम्हें रकम की जरूरत पड़ी तो शरह सूद हम कम करवाएंगे, या तुम जिसको शरह सूद दे रहे हैं हम तुम्हारा जो डिपॉजिट रखी हुई रकम है उसके अंदर हम थोड़ी करें, और वो भी हमेशा के लिए नहीं, 1 साल के लिए, फिर आइंदा साल तुमको इसको कवर कर लेना है, यानी हमें दे देना है वही 25%, 5% जमा करवाना है। और उस पर ट्रेजरी बिल के हिसाब से उस कमर्शियल बैंक को सूद देता है जो अमूमन 14 या 15% होता है, और कमर्शियल बैंक को जो 8% सूद कर्जा लेने वाले की तरफ से मिलेगा उसमें से 5% मरकजी बैंक को देगा। इस सूरत में कमर्शियल बैंक को 3% सूद इसमें से बचेगा। हुकूमत ये करवाएगी कि तुम इसको इतने शरह सूद पर दो और हम तुमसे पूरा नहीं लेंगे बल्कि हम तुमसे थोड़ा कम लेंगे, इसलिए कि रिजर्व बैंक तो इसके लिए है नहीं, तो नेटवर्क को महफूज रखने के लिए पूरे मुल्क की बैंकों का निजाम चला, लेकिन आ रही है रकम तो वापस भी क्यों करे हो, लेकिन फायदा उनको कर दिया, तो बैंकों को फायदा हुआ, कारोबार को फायदा हुआ, और मुल्क को जो इनको जो नुकसान हो रहा है, रिजर्व बैंक ने कम सूद इनके पास से लिया तो वो इसमें से जो इसके पास से आएगी फॉरेन करेंसी इससे वसूल हो जाएगी। इंडियन रुपये की कीमत कभी कम हुई और अमूमन कम ही होगी इसके मुकाबले में, तो इस एतबार से मुल्क को वहाँ फायदा हो गया। रिजर्व बैंक चूंकि मुल्क की है इसलिए उसने वो फायदा करवाया, और इस तरह ये एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म निज़ाम है इक़्तिसादियात का, क्योंकि इतना पेचीदा यहूदियों ने बना दिया है कि हर आदमी अर्थशास्त्री नहीं बन सकता है, हर एक की समझ से बाहर है। और 14 या 15% सूद मरकजी बैंक की तरफ से मिलेगा। ये भी ट्रेजरी बिल भी होते हैं, मुस्तकिल ट्रेजरी, हमारे दोस्त अभी रिटायर और हमारे साथी स्कूल में पढ़ते थे, ट्रेजरी बिल में थे वो सरकारी के, और वो रिटायर हो तो ट्रेजरी बिल की हुकूमत इस तरीके से तैयार करता है। मौलाना आगे भी उस पर गुफ्तगू करेंगे और 14 या 15% सूद मरकजी बैंक की तरफ से मिलेगा। इसका मकसद बरामदात में तमील की हौसला अफजाई है। दोनों को फायदा हुआ, सामने वाले को बेचने के लिए तरकीब मिली और उसका जो फॉरेन करेंसी आई वो हुकूमत को मिली।